So before moving forward, I will give you a review of the queue. If we are talking about the queue, then it is a FIFO type of data structure, means operation sequence will be like this, first in, first out. Okay, and we can implement it either by using array or by using linked list. And we are having two pointers. Let's suppose we are implementing it using array like this. Suppose 5, 6, 7. So suppose it is front and it is rear. So whenever we want to delete an element, the element will be deleted at this end front, and if we want to insert a new element, that will be added at the rear. Okay, how? We simply move the rear to a blank position and insert a new value over there. And if we want to delete an element, then we simply move the or change the location of the front to the next location. So logically, this element will be removed from here. Okay, so we will have these two locations in the queue, front and rear. Deletion operation will take place at front, insertion operation will take place at rear. But there are some drawbacks of the simple queue. Like we can have some case like it may be possible there is one element in the queue, but logically the queue is full. That case will be like this. So suppose queue can be full in this scenario also, front here, rear here, and elements 5, 6, 7, 8, 9. So when this element will be deleted, front moved here. When this element deleted, front will move here. Then so on. तो इस तरह से हम delete करते जाएंगे. The value of front will be changed, and at the end front will be here. So in this case, you can see there is only one element in the queue. Okay, and rest of the entries in the queue are empty or blank. But logically, this queue is full because we cannot move further forward the rear if we are just implementing it using array into the forward location. Okay, we cannot utilize these blank location, empty locations in the simple queue. Okay, so for overcoming this particular drawback of the simple queue, we are having another variant of the queue. Okay, so the drawback of the queue is once the queue is full, even though few elements from the front are deleted and some occupied space is relieved, it is not possible to add any more new element there. This will be the situation when rear is pointing to this location. Okay, and suppose front is also pointing to this location. Now if the queue is full, now what will happen? We will not be able to add any element. So what can happen? Suppose यहाँ पे element are 12. So we will apply a kind of logic like if this is the situation, then rear will be moved from here to this first position. Now we can enter one element. Suppose the element is 80 here. So front will be here, rear will be here. Then so in this way we can utilize the locations of these empty locations in a particular queue. करना पड़ेगा ना कि मतलब फ्रंट इस लोकेशन पे है भी नहीं ना, क्योंकि फ्रंट ऑलरेडी इस लोकेशन पे रहेगा, हम लोग रेयर को तो डाल नहीं सकते ना सर, मतलब समझे सर कि फ्रंट ऑलरेडी 0 पे है और रेयर हमारे यहाँ हो गया, तो फिर वापस यहाँ तो डाल नहीं सकते ना, क्योंकि ऑलरेडी इधर एक नहीं, फ्रंट कहाँ पर है वो उस चीज पे डिपेंड करेगा ना सर, फ्रंट कहाँ पर है। हाँ हाँ हाँ, ये तो हमको चेक करना पड़ेगा उसमें, ठीक है ना भाई। दो कंडीशंस हो सकती हैं, देखो एक यहाँ फुल वाली केस की अगर हम बात करें, देन if front equal rear equal लास्ट पोजीशन, देन दोनों ही बिल्कुल लास्ट पोजीशन पे, उस केस में ऐसे तो फ्रंट इक्वल रियर मिडिल में भी हो सकता है कहीं पे, पर रियर को मूव कर सकते हैं। तो सपोज जैसे ये केस है, यहाँ पर हमारे पास 5th लोकेशन लास्ट है, देन फ्रंट इक्वल रियर इक्वल, सपोज द साइज ऑफ द क्यू इज n, देन इट शुड बी n-1। क्लियर? ओके, सर इसमें मेमोरी वेस्टेज भी नहीं होता, मतलब अपना अगर नॉर्मल की होता है उस पे तो वेस्ट हो जाता है। इसमें नहीं होगा बेसिकली। ये अगर हम वी आर इम्प्लीमेंटिंग इट लाइक यूजिंग लिंक लिस्ट तो मीनिंग ही नहीं है उसका, ठीक है। बट अगर एरे के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, देन वी आर डूइंग स्टैटिक एलोकेशन, सो इन दैट केस वी कैन नॉट मॉडिफाई द साइज ऑफ द अरे। ऐसे तो डायनेमिक अरे से भी कर सकते हैं, बट उसका भी ड्रॉबैक है
हम अगर एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो, और ड्रॉबैक क्या है वहाँ पे? ड्रॉबैक ये है कि अगर आप नया एरे उससे बड़े साइज का डिक्लेयर करते हो, देन यू नीड टू कॉपी द एलिमेंट बैक इन दैट एरे। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके, सो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ लॉजिक क्या है, यू पीपल टेल मी, सपोज वी आर हैविंग दिस लाइक, ठीक है, ये मेरे पास क्यू है 0 1 2 3 4, और फ्रंट भी यहाँ पर है और रियर भी यहाँ पर है, और एलिमेंट है सपोज इसमें 10। नाउ व्हाट लॉजिक शुड आई इम्प्लीमेंट कि जब ये इस तरह की सिचुएशन है तो रियर यहाँ पे आ जाए? क्या पॉसिबिलिटी है ऐसी, कैसे कर सकते हैं इसको? this position पे ऐसा this index पे है +1 divided मॉड्यूल बाय कैपेसिटी इज बी नॉट सी को जो मिल जाएगा। ओके, तो अच्छा, तो रियर कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, 0 लोकेशन पे आ जाएगा। 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, इसकी कैपेसिटी 5 है, 5 मॉड्यूल 5 0 होता है, तो उससे आगे आ जाएगा। ठीक है, मीन्स वी विल यूज दिस ऑपरेटर देयर, मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है। सो इट विल गिव अस रिमाइंडर एंड व्हेन इट विल बी हियर, तो जब हम 5 मॉडुलो 5 करेंगे यहाँ पे, जैसे साइज सपोज क्यू का यहाँ पे क्या है 5, तो इट इज एट 4, तो r प्लस 1, जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, रियर इक्वल रियर प्लस 1, तो रियर प्लस 1 मॉडुलो मैक्स साइज, ठीक है। सो विल यूज दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हियर, ठीक है। So basically the queue is not linear but circular. Its structure can be like the following figure. In circular queue, once the queue is full, the first element of the queue become the rear most element, if and only if the front has moved forward. Otherwise it will again be a queue overflow state. Okay, क्योंकि अब इसमें queue overflow कब होगा? अच्छा चलो ये भी बताओ मेरे को, जैसे ये हमारे पास क्यू है एंड व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर लाइक 0 1 2 3 4, और अज्यूम करो ये सर्कुलर है, जैसे चलो इसी को ले लो, ये डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे। द क्यू विल बी, क्यू ओवरफ्लो कब होगा इसमें? सर अगर जो रेयर का नेक्स्ट एलिमेंट जो रहेगा, मतलब जो मैंने रेयर निकाले था रेयर प्लस 1 मॉड्यूलो को, अगर वो फ्रंट इक्वल हो जाएगा, अगर तो फिर वो तो फुल हो जाएगा, देन नेक्स्ट वाला रेयर का नेक्स्ट एलिमेंट अगर फ्रंट है, हाँ जी, मतलब रेयर प्लस 1 मॉड्यूलो कैपेसिटी अगर फ्रंट इक्वल हो जाएगा सर, फुल हो सकता है। तो फुल हो सकता है, मीन्स जैसे यहाँ पे ये एंट्रीज हैं, वी आर अगर मतलब जो इसकी साइज 8 है सर, और रेयर समझो सर 7 पे अपना, तो 7 प्लस 1 मतलब 8 मॉड्यूलो 8 0 है, और करंटली 0 पे ही है सर, तो फुल हो जाएगा सर। बिल्कुल, यू आर राइट। सो ये सिचुएशन होगी तो ये फुल होगा, ये तो हटा दो यहाँ से इन दिस केस। सो फ्रंट इक्वल रियर प्लस 1 modulo the size of the queue. Okay, so we can have some examples like this. So yeah, in this queue we are not assuming like the first location as -1, we are assuming it, sorry, the first 0, we are assuming it 1, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स मैंने कहीं से कॉपी किए थे ताकि मैं थोड़ा विजुअल फॉर्म में शो कर सकूं इसको। तो इन दिस केस द क्यू इज empty when the rear or front equal 0 because the first location in the queue is 1, ठीक है। अच्छा, now if we simply want to insert an element in the queue, then what will happen, we need to set both the rear and front to the 1. So this element is at this location. Now if we want to insert one more element, then rear will be 2, front यहीं पर रहेगा अभी, one more element, rear is here, one more element, rear is here, ठीक है। and if we want to delete an element, so rear is at, sorry, front is at this, तो क्या होगा, ये वाला एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। तो हम सर्कुलर फॉर्म में चलते रहेंगे और मेमोरी का वेस्टेज नहीं होगा बेसिकली, ठीक है। like now we want to insert 100, then it will insert it at location number 5. Now if we want to insert 40, it will be inserted here. Now if we want to insert one more element, now we are not able to insert any element because the queue is full. तो क्या होगा, कंडीशन विल बी लाइक फ्रंट इक्वल रियर प्लस 1 मॉडुलो मैक्स साइज। तो अगर मैं सिंपल लिखूं फ्रंट इक्वल रियर प्लस 1, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, मीन्स वी नीड टू चेंज दिस वन टू दिस पर्टिकुलर एंट्री, ठीक है। यहाँ तो पॉसिबल है, बट अगर रियर यहाँ पे होता है और फ्रंट यहाँ पे होता है तब नहीं होगा। तो उस केस में हमको वही अप्लाई करना है जिस तरीके से ये व्हेन बोथ ऑफ देम आर एट द लास्ट लोकेशन, फ्रंट और रियर, ठीक है। ओके, होप इट इज क्लियर। So what can be the algorithm for insertion and deletion operation?
So suppose we are implementing the algorithm. This is an array, rear pointer, front pointer. I'm just calling this pointer, but ये pointer नहीं है यहाँ पे, ठीक? Okay. So initially, first of all, we want to check the overflow condition. What will be the overflow condition? तो ये तो clear था जो मैं पूछ रहा था अभी, ठीक है? Like this will be the case. Overflow condition will be front equal rear plus 1 modulo max size. Means front जो होगा ना वो just rear के आगे की तरफ होगा, ठीक है? And if we are utilizing this modulus, then it will help us when the rear is at the last location. तो ये कैसे होगा? Suppose this is the list 0, 1, 2, 3, 4 and size of Q is 5 here. Okay. Suppose front end as here and rear is at here. तो rear 4 पे है. अब नाउ लॉजिकली ये कंडीशन देखें तो फ्रंट की वैल्यू क्या है? 0. रियर क्या है? 4 + 1 मॉड्यूलो 5. 5 मॉड्यूलो 5 0. तो ये सिचुएशन हुआ. इसी केस में जो क्यू है वो हमारी फुल होगी, अदरवाइज नहीं होगी. ठीक है, क्लियर हो गया नहीं? ठीक है. सो दिस विल बी द कंडीशन फॉर ओवरफ्लो. एंड अगर ऐसा नहीं है तो हम एलिमेंट तो इंसर्ट कर सकते हैं, बट वी आर हैविंग वन मोर केस. लाइक इफ द फ्रंट क्यू टोटली एम्प्टी है तो फ्रंट और रियर कहाँ पे होंगे? -1 पे. इफ फ्रंट इक्वल -1 देन सेट फ्रंट इक्वल रियर इक्वल 0. एल्स रियर इक्वल रियर प्लस 1 मॉड्यूलो एन. अब ये मॉड्यूलो एन यहाँ क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि अगर सपोज ये लास्ट लोकेशन पे है तो ये फर्स्ट लोकेशन, 0th लोकेशन पे आ जाए. ठीक है, तो यहाँ तो हमने ओवरफ्लो चेक किया है, यहाँ पे हमने पॉइंटर्स को सेट किया है इसमें, और यहाँ पे हमने क्या किया? वैल्यू इंसर्ट कर दी. ठीक है, तो दिस इज द इंसर्शन ऑपरेशन. नाउ द डिलीशन ऑपरेशन, वो भी इजी है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो. डिलीशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक फॉर द अंडरफ्लो कंडीशन. तो अंडरफ्लो कब होगा? 1 फ्रंट इक्वल -1. नहीं है तो हम वैल्यू सेट कर लेंगे, वो कॉपी कर लेंगे पहले जो डिलीट कर रहे हैं, एंड देन वी विल सेट द पॉइंटर. हाउ विल सेट द पॉइंटर? वन केस में भी लाइक देयर इज ओनली वन एलिमेंट, तो वन एलिमेंट होगा तो फ्रंट इक्वल रियर, देन विल सेट बोथ ऑफ देम -1. ठीक है, अदरवाइज फ्रंट इक्वल फ्रंट प्लस 1 मॉड्यूलो मैक्स साइज. तो ऑलमोस्ट वैसा ही है, थोड़ा सा कंडीशन चेंज है, और ये वाली कंडीशन चेंज है जो हम यहाँ पे फ्रंट और रियर को इंक्रीज कर रहे हैं, और दूसरी चीज वो वाली चेंज है कि हम ओवरफ्लो कंडीशन कैसे चेक कर रहे हैं. ठीक है.